Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So let's start today's lecture. Today we are going to discuss about first context switch. Now what does context switch mean? I hope we discussed it earlier also. Let me explain in details in today's lecture. A context switch means saving the context of one process which is executing and loading the context of another process which wants to execute next. Now remember, let's see an example. This process P1 was executing in the CPU. Now consider its priority was low. It was a low priority process which was executing in the CPU. Here it is CPU and P1 was executing in it. Now a process P2 came with high priority, and we know whenever a high priority process comes into the system, then low priority process is exempted from the CPU and CPU is granted to the high priority process. Now the time frame which is here, which is free in between these two processes, process P1 was executing, it was exempted from the CPU and put it back into the रेडी क्यू. इसको रेडी क्यू में हम वापस लेके आ गए. अब द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस P1 to the registers and loading the context of this P2 into the registers is called as context switching time. Now you will be wondering what is the context of a process. Remember, in the previous lecture we saw that process contains some attribute like process ID, process state, program counter, priority, list of open files, general purpose register, list of open devices and protection information. Every process contains all these fields which is we know as process control block. Process control block, हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ अ प्रोसेस. अब हमने इसको दूसरा नाम एक और दे दिया है कि दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस. Context of a process, or we can simply say that it is the data of a process which a process contains to execute in the system. अब इन लेमेन्स टर्म्स अगर आपसे सिंपली कोई पूछे और अगर आपको सिंपली बताना है तो आप सिर्फ इतना बताइए कि एक प्रोसेस जो पहले से ही एग्जीक्यूट कर रही थी, हमने उसके डेटा को स्टोर करवा दिया है रजिस्टर्स के अंदर, और जो नेक्स्ट प्रोसेस आई है उसका डेटा हमने करंटली एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्टोर करवाया. तो जो टाइम हमें लगा वो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है. आई होप दिस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज clear to you all. If you have any doubt you can comment down. Now let's move to the next topic, which is schedulers. Schedulers play a very vital role in our operating system. Now there are three type of schedulers. We will discuss one by one. Long term scheduler. Now think about when a new process is created. New process is created and it is bring to the ready queue. रेडी क्यू है, जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है तो हम इसको लेके आते हैं रेडी क्यू के अंदर. अब इस रेडी क्यू से ये जाता है आपका रनिंग स्टेट के अंदर. ये हमने पहले भी देखा था तो सेम है. अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो ये डिसाइड करता है कि क्या इस प्रोसेस को अभी रेडी क्यू के अंदर लेके आना है या नहीं लेके आना है. ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? Short term scheduler is responsible for selecting one of the process from the ready queue.
सिंपल है। ये क्या करता है, अब जितनी भी आपकी रेडी क्यू के पास जॉब्स है, मान के चलो इसके पास जॉब 1 से लेके जॉब 10 तक जॉब्स थी, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, ये एक को शेड्यूल करवाएगा फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। नाउ एक बार आप इस चार्ट को दोबारा देखिए, इसके अंदर हमने देखा था कि प्रोसेस एक क्रिएट हुई, उसके बाद हमने क्या किया, उसको रेडी क्यू के अंदर लेके आए। रेडी क्यू में लेके आने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, आपने उसको रनिंग स्टेट के अंदर लेके गए। जो न्यू से रेडी तक आने का प्रोसेस था वो आपका किया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने, और जो रेडी से लेके रनिंग तक आया वो काम किया आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, रेडी क्यू से कुछ जॉब को सेलेक्ट किया और उसको शेड्यूल किया फॉर द रनिंग। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है, यहाँ देखिए, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये वेटिंग स्टेट के अंदर जो प्रोसेस थी उनको पिक करता है और ये सस्पेंड करता है उनको ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन से दैट ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। अब दिस इज द वर्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर suspending and resuming the process, suspending and resuming the process। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्पेंडिंग एंड रेज्यूमिंग द प्रोसेस। अब ये सस्पेंड क्यों करता है, ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरेज, ड्यू टू द लैक ऑफ storage। I hope this topic is clear. Now there is a note which we should remind. Long term scheduler should select a good combination of both CPU bound and IO bound process to get a good throughput. Throughput we remember, number of jobs done in unit टाइम, कितने टाइम के अंदर आप कितनी नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीट करते हो, ये है आपकी थ्रूपुट। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड आईओ बाउंड प्रोसेस। नाउ सीपीयू बाउंड प्रोसेस मींस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब है कि जो एक प्रोसेस मान के चलिए P1, ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी इनटू द सीपीयू। ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी सीपीयू का। और ऑन द अदर हैंड आईओ प्रोसेस, आईओ बाउंड प्रोसेस क्या करता है, P2 इट विल स्पेंड मोर टाइम इन आईओ कंप्लीसन। ये सीपीयू टाइम कम लेगी और आईओ टाइम ज़्यादा लेगी। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शुड सेलेक्ट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है, हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका न्यू प्रोसेस क्रिएट हुई उसको रेडी क्यू के अंदर लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये कह रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि जो आपका रेडी क्यू है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जॉब्स प्रेजेंट हैं, मान के चलिए 10 जॉब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है जो है वो आपकी 10 है इस केस में, जब आपकी रेडी क्यू के अंदर 10 जॉब प्रेजेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन मेन मेमोरी एट अ टाइम। अब रेडी क्यू भी मेन मेमोरी के अंदर ही है आपकी। I hope this topic is also clear. Now next term is dispatcher. डिस्पैचर क्या करता है, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था। ये क्या करता है, सेलेक्टेड जॉब को, रेडी क्यू है, ये क्या करता है, जो भी सेलेक्टेड जॉब है उसको ये सीपीयू के पास लेके जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, लोड सेलेक्टेड जॉब इनटू द सीपीयू। एक और काम ये करता है, इट ऑल्सो डज कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग जो प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 के बीच में टाइम लगता है बिटवीन द सेविंग ऑफ दिस प्रोसेस कंटेक्स्ट एंड
लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ये काम भी आपका डिस्पैचर करता है. Have a question for you which is very interesting question. Please read it out. Consider a system which has n CPU processors. Then what will be the minimum and maximum number of processes present in ready queue एंड रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट. इसके अंदर 3 क्वेश्चन है कि आपका रेडी क्यू के अंदर कितनी नंबर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोसेस हो सकती हैं, रनिंग के अंदर कितनी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोसेस हो सकती हैं, एंड ब्लॉक स्टेट के अंदर कितनी मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोसेस हो सकती हैं. It is a very interesting question. Thank you. See you in the next lecture. If you have any doubt, please comment down in the comments. And many of you have not subscribed this channel. Please subscribe this channel and share with others aspirant too.